Hi everyone, this is hi everyone. Hi everybody. Hello everybody. Hi everybody. Where is it? Hi everybody. Hi everyone. Ha ha. Hi. Hi everybody. For the 10th time, hi everybody. This is me Kanika and welcome to my channel OK Rolling. For those who don't know me, I'm Kanika. I'm 24 years old. I live in Dubai, and this channel is an attempt from my side to just get started on videos, shorts, reels, and all like video things. Because I really like to have cameras on me 24/7, so I thought might as well just do something out of it. If nothing else, it's just going to be a showcase of memories. If it doesn't blow up, if I don't become famous, if I don't become an influencer, it's fine. I'll just have the memories in place. So, although internally I do hope I become an influencer. I actually wanted to be an actor, but in like when I was a child, but then I realized that I really can't act, so I can just do the other part of it, which is making faces and talking. So I thought to just get started on it now, get a channel, put content on it, shoot videos with my friends here, with my mom, who is going to be today. So my mom's going to be my first guest on my podcast. That intro I'm going to do later. And just to let you know what all this channel will have is mostly me, obviously. So I'm gonna have a lot of podcasts coming in currently. So that's my plan for now. All my friends here, I'm gonna get them talk about things and just various topics in general. That and a little bit of like vlogs here and there. If I go out, do something interesting, which I do not do a lot, but if I do, I'm gonna post about it now. Um, so it's going to be a mix of all of that, and yeah, I hope you like watching it. I hope you enjoy watching the content here. It's going to be a bit explicit sometimes, but all in all, I can assure you it's going to be really really interesting to watch. If not, you can just shut the channel off and enjoy and watch something else, or binge watch, or some new series. The first guest on my channel is going to be my mother, because I believe in charity begins at home, and also it was easier to just get her because I still have to persuade other people who I'm planning to shoot videos with. So yeah, here's my mom. The episode's going to be in Hindi because that's the language we use at home. But if you do not know Hindi, I'm going to add in the English subtitles for you to understand. And let's begin. Hey. Hi. Hello. सो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कौन हो, मेरी मम्मी प्लीज। मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं मेरठ की हूँ बेसिकली। मेरठ में पली बड़ी हूँ, वहीं पे मैंने स्कूलिंग और अपने कॉलेज किया। उसके बाद शादी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शादी की। आपने कभी जॉब क्यों नहीं करी? जॉब मैं करना चाहती थी, पर मेरे पापा को पसंद नहीं था कि लड़कियां जॉब करें उस टाइम पे। पर आपने कभी बोला भी नहीं कि मतलब मुझे जॉब करनी है? बोला पापा को, मैंने बोला कई बार कि मुझे जॉब करनी है, मैं जॉब करना चाहती हूँ, पर वो बोले कि नहीं नहीं, लड़कियां जॉब नहीं करती। उस टाइम पे करती नहीं थी, बहुत कम थी। तो बस कि शादी करो पहले, शादी के बाद जो करना है तब करना, जॉब हो या कुछ भी, जो भी काम। मतलब ड्राइविंग की मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं करूँ, वो भी नहीं करने दी कि नहीं नहीं, लड़कियां ड्राइविंग नहीं करती, ड्राइवर हो वो चलाए ठीक है। लड़कियों को नहीं इतनी आज़ादी थी उस टाइम पे। ओके, तो just to let everybody know, the topic of this podcast is just going to be around motherhood and parenting, some normal like conversation I'm going to have with my mom about just motherhood in general and parents, how they are. जब आपको पता चला कि चलो अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ जो भी, तो आपने फिर ऐसे सोचा कि कोई स्ट्रैटेजी प्लान बनाना स्टार्ट किया कि मैं ऐसे मम्मी बनूंगी या मैं वैसे मम्मी बनूंगी? हाँ, या तुमने क्या सोचा था, ये बताओ। मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों की हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड बन के रहूँगी। कहते हैं ना कि 15 साल तक बच्चों के आप पेरेंट बनो, मतलब उन्हें अच्छी पेरेंटिंग करो उनकी, और डांटो भी गलत चीज़ों पे, लेकिन जब 15 साल के बाद होते हैं उनको फिर अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। तो बस क्योंकि उससे बच्चे को छुपाते नहीं है, एज अ फ्रेंड शेयर करते हैं हर चीज़ अपने पेरेंट्स से। और आप कितने साल की थी जब मेरी शादी? नहीं, जब आप प्रेग्नेंट हुई? 25 में आप प्रेग्नेंट हो गई थी? अच्छा ठीक है, फाइन। तो अच्छा ठीक है, आपने बोला कि आपको दोस्त वोस्त बनना था या जो भी, बट शुरू में मतलब शुरू में तो आप सब स्ट्रिक्ट ही होते हो मोस्टली कि मतलब आप बात नहीं कर सकते पेरेंट्स से। अभी भी बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि बच्चे उनसे बात नहीं कर पाते खुल के, पर आप
आपको ऐसा क्या लगता है कि आपने अलग करा, क्योंकि मैं तो आपसे सब बात कर लेती हूँ? हाँ, क्योंकि हमने शुरू से ही बच्चों से हर चीज़ शेयर की है। हम भी शेयर करते थे, बच्चे भी हमसे शेयर करते थे। स्कूल से आते ही जैसे ही बच्चे घर में एंटर हुए, तुम लोग आते, मम्मा आज ये किया, आज ये किया, आज वो किया। हाँ, स्कूल ठीक है, मैं तो आगे स्कूल। जैसे अभी बॉयफ्रेंड हो गया या कुछ इसके सेक्स के बारे में क्योंकि कभी डांटा नहीं ना तुम लोगों को। अगर मैं डांटती या मारती तुम्हें किसी उस चीज़ पे कि तुम कुछ कोई नुकसान किया, जैसे पेरेंट्स क्या डांटते हैं बच्चों को, मारते भी हैं, हाथ भी उठाते हैं, पर हमने कभी नहीं, ना तेरे पापा ने ना मैंने कभी ऐसा की हाथ उठाया है कभी। बस समझा दिया था कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होती है, गलत चीज़ें नहीं, ये सब। तो फिर तुम कभी ऐसे छुपाते भी नहीं थे, जो भी बात होती थी तुरंत आप बता देते। जो कोई नुकसान होता था, हाँ मम्मा मुझसे हुआ है या कुछ, तुम्हें पता था डांट तो पड़ेगी नहीं। हाँ, तो इसलिए। और पर जैसे अब आप ओपन हो अपने बच्चों के साथ, पर आपको दिख रहा है कि चलो वो कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, जैसे भी अगर दारू सिगरेट अगर वो कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है, तो आप कैसे उन्हें मना करोगी? पर आप स्ट्रिक्ट भी नहीं हो, तो वो आपसे डरते भी नहीं है, तो वो आप कैसे करोगे? और आपको पता है मैं उन्हें बताऊंगी कि देखो इस चीज़ के ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ठीक है। तो उन्हें पता होता है, इतने बच्चे तो वो होते नहीं आजकल, तुम भी कोई बच्ची तो हो नहीं, तुम्हें पता है कि इस चीज़ में हमारा फायदा है, इसमें नुकसान है। तो पेरेंट्स का तो ये है कि उन्हें बताओ कि इसका बेटा ये नुकसान है, ये फायदा है, अब बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम समझदार हो, फैसला तुम्हारे हाथ में। फैसला बच्चों के हाथ में ही देना चाहिए। तुम्हें जो करना है, तुम्हें नशा करना है करो, कल को तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि उसके कितने बड़े नुकसान है और तुमने क्या खोया, है ना। तो स्ट्रिक्ट रहोगे तो बच्चे बाहर चोरी छुपे करेंगे, तुम्हें बताएंगे भी नहीं, जाएंगे पढ़ाई के बहाने या किसी चीज़ के बहाने और नशा करके आएंगे। तो उससे अच्छा आपको पता होनी चाहिए चीज़, उन्हें बताओ। और बच्चे समझदार सब है आजकल, पागल या बुद्धू कोई नहीं है। उन्हें पता है कि नशे में कितनी बुरी जिंदगी फंसती है, कैसे फंसते हैं लोग। जैसे अभी आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पूरा रिलेशनशिप्स और ये सब चल रहा है, तो लाइक शादी से पहले भी सेक्स इज नॉर्मल, तो आपको उस पर क्या कहना है कि इज इट ओके? क्योंकि अब देखो, अब देयर आर टू साइड्स, अगर आप किसी से शादी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप सेक्सुअली कंपैटिबल हो कि नहीं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता चले आप शादी कर ली। हमारे टाइप में तो ऐसा नहीं था, तो हमें तो ये बहुत अजीब लगता है शादी से पहले ये करना, सेक्स ये सब। क्योंकि हमारे क्या था कि जिससे सेक्स किया उसे शादी करनी होती थी कि भाई नहीं ये टाइम वो टाइम ऐसा था कि नहीं, सेक्स कर लिया इसी लड़के से शादी होगी आजकल। पर आजकल तो नॉर्मल ही है शायद ये सब। और मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे अगर जब लाइफ में अगर मम्मी होती किसी की, तो मैं काफी स्ट्रिक्ट होती कि मतलब मतलब मैं मुझे कंट्रोल करना अच्छा लगता है चीजों को, ठीक है। वाह। तो मेरे लिए कंट्रोल होना अच्छा नहीं लगता, मतलब हाँ कि मैं दूसरे को कंट्रोल करूं, ठीक है। तो आप भी एज अ मदर चाहती थी कंट्रोल के नहीं? नहीं, मैंने कंट्रोल कभी नहीं चाहा कि कंट्रोल करूं बच्चों को, ना। ये तो तुझे भी पता होगा। हाँ, पर कंट्रोल नहीं किया। हाँ, पर एक एज होती है उसमें कंट्रोल किया। जैसे एक एज होती है आपकी जब आप छोटे होते हो, उसमें सिखाना बच्चों को कि क्या गलत है। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत शैतान भी होते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, बहुत गालियां भी देते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप उन्हें बताओ कि नहीं बेटा ये गलत है, इसे बच्चे समझते हैं। वो कंट्रोल नहीं होता, वो आप सिखा रहे होते हो अपने बच्चे को। लेकिन 15-16 की एज के बाद आपको सिखाने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें समझ आ जाती है इतना, तो बड़े हो जाते हैं, उसमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जो वो कुछ क्वेश्चन पूछे उनका सही जवाब दो आप उन्हें। ये नहीं कि नहीं मुझे नहीं पता, शर्म के मारे कि नहीं हमसे मत डिस्कस करो, अभी मत इस चीज के बारे में जानो। आपने मुझे कभी सेक्स के बारे में बताया नहीं। मुझे याद है मैं बार गई थी आपके पास पूछने के लिए कि ये सेक्स क्या होता है, तो आपने कहा कि या तो मेल या फीमेल, ऐसा करके। अभी भी तो बहुत छोटी होगी तब। छोटे तो नहीं थी, ऐसे 16-17 तो नहीं होगी। 16-17 नहीं थी, मतलब उससे तो मैं क्या थोड़े 10 साल के बच्चे को थोड़ी बताऊंगी सेक्स के बारे में। एक एज होती जैसे चली जाती है, जैसे कि आप पीरियड्स के बारे में बात करते हो। मैंने तुझे पहले बता रखा था। हर माँ को बताना भी चाहिए, बहुत सी नहीं बताते ये क्या होता है। बच्चे पूछते हैं ऐड देख के टीवी में, तो वो बता देना चाहिए। हमने कभी तूने पूछा था, मैंने देख तुझको बताया भी था शायद कि मम्मा ये क्या है, मैंने बताया बेटा ऐसे होता है। तो ठीक है, एक एज होता है। अब उस टाइम पे मैं सेक्स की नहीं बता सकती थी ना। उस टाइम पे 10-11 साल की बच्ची को क्या बताऊं मैं सेक्स का। जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसके शरीर में भी चेंजेस आते हैं, वो तब पूछती है। तो
तब बताना चाहिए, तब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वाह। तो पहले तो मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ही होता होगा डेटिंग और मैरिज, पर अब बहुत सारे नए टर्म्स आ गए हैं। अब सिर्फ मतलब अब तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं है। पहले कोई अगर डेट करता था तो उसे बड़ी वैसी नजरों से देखा जाता था कि ये गलत है, मतलब ये लड़की कैसे कर रही है काम, तो मतलब ये लड़की गलत हो गई, इसकी शादी कर दो। पर लड़कियों को ही क्यों हमेशा अब ब्लेम करता था ये लोग कि मतलब लड़की गलत होगी? पहले से पुरुष प्रधान रहा है समाज भाई, तो यहाँ पे जेंट्स का ही दबदबा रहा है, पर गलत है, हमें तो बुरा लगता था। बराबर का होना चाहिए ना लड़कियों का। तो वो पैटर्न कहाँ पे ब्रेक, आपने कैसे ब्रेक करा? अगर आप कहो जैसे आपकी, अब जैसे नानी ने आपको ट्रीट करा, हाँ। आपने मुझे सेम वे में तो ट्रीट नहीं करा ना। नहीं, तो वो आपने कहाँ पे? तो ये ना कि भाई लड़कियों की इच्छाएं नहीं दबाओ। अगर कोई लड़की आगे, बहुत सी लड़कियां भी ऐसी होती है कि उन्हें घर में ही रहना होता है, उन्हें पसंद भी है कि घर में ही रहना है, भाई पति कमा रहा है और हमें ऐश काटनी है। बहुत कम है ऐसी, और पर आजकल तो शायद कोई नहीं है जो घर में रहना पसंद करेगी। अधिकतर सब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, हर लड़की। ट्रू। तो अच्छा है। या तो मतलब अगर आप, एक ये भी होता है कि अगर आपकी मम्मी ने आपको दबाया है बचपन से, कभी आपको फ्रीडम नहीं मिली जो भी, तो आप भी अपने बेटी के साथ वही करोगी। वैसे भी लोग होते हैं, तभी तो ये पूरा सर्कल है कि अभी भी वैसी लड़कियां हैं जो कुछ नहीं करना चाहती और जो सिर्फ घर पे बैठना चाहती हैं। हाँ है, समाज है, देखो इसमें हर तरह के लोग हैं। चलो लड़की तो ठीक है, और लड़कों का बताओ अब क्या, कि लड़कों को आप कैसे रेज करोगे? मतलब आपके पास एक, जैसे मैं हूँ, लक्ष्य है, लड़कों को भी घर का काम आना चाहिए। जैसे लड़कियों को हम जरूरी समझते हैं ना कि इसको रोटी बनानी या सब्जी बनानी आनी ही चाहिए, तो लड़कों को भी हमें सिखाना चाहिए कि भाई तू भी रोटी या सब्जी बनाए। हाँ, आना चाहिए, हर लड़के को आना चाहिए। हाँ, घर का हस्बैंड वाइफ है, मिल बांट के काम करो, दोनों जॉब करते हैं आज। तो ये है कि भाई आधा काम तू कर, आधा मैं करूँ। क्यों सारा तुम्हें लड़की पे डालना है? ये कोई काम बांट के थोड़ी भगवान ने भेजा कि ये लड़की ही करेगी काम। पहले होता था पर अब नहीं होता ऐसा, तो बराबर का होना चाहिए दोनों को। तो मैं ये कह रही थी कि अब सिर्फ डेटिंग और मैरिज, जैसे पहले था डेटिंग और मैरिज, 2 टर्म्स हो गए, बात खत्म। अब इतने सारे नए टर्म्स आ गए, जैसे आपने बताया। चलो मैं आपको बताती हूँ, आप गेस करो कि, आप पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, बट देखो आपको पता है कि क्या है। क्या? जैसे कि वन नाइट स्टैंड, ये क्या होता है पता है? वन नाइट स्टैंड, जिसको डेट करे हो एक रात के लिए, स्टैंड क्या मतलब सेक्स करना एक दिन के लिए। हाँ, मतलब वन नाइट स्टैंड, उसके बाद मिलना नहीं है, एक रात करके। हाँ, वेरी गुड। फिर मैंने सुना है, पढ़ा है मैंने, मुझे नहीं पता क्या है। हाँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि ये नए नए टर्म्स हैं। अब आप गेस कर सकती हो कि क्या मीनिंग होगा। गोस्टिंग, नहीं पता। गोस्टिंग मतलब कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ और मैंने उसको अचानक से इग्नोर कर दिया, मतलब लेट्स से हम 4-5 दिन तक बात कर रहे हैं और एक दिन रैंडमली मैं बोर हो गई, उसके बाद मैंने कभी बात ही नहीं करी उससे। वो गोस्टिंग होगी। हाँ, वो गोस्टिंग होती है। पता नहीं मुझे। तो हाँ, वो। फिर बॉडी काउंट, बॉडी काउंट नहीं पता। बॉडी काउंट तो इजी है, थोड़ा सोचो। बॉडी काउंट नहीं पता ना, बॉडी काउंट नहीं पता मुझको। अच्छा, बॉडी काउंट इज कि आपने कितने लोगों के साथ सेक्स किया है, कि मतलब लाइफ में ओवरऑल कितने लोगों के साथ आपने किया है। नहीं पता इसके बारे में। वो बॉडी काउंट आजकल क्या क्या नाम नए नए आ रखे हैं, मुझे नहीं पता। यही है। और क्या नया टर्म है? सिचुएशनशिप बता दो। चलो, जैसे पहले रिलेशनशिप होता था, अभी सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप नहीं पता यार, आपको कुछ नहीं पता? जब नहीं पता मुझे, मैं पहले बता के रखती ना। पहले के बताती, मैं तब कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। तो सिचुएशनशिप मतलब कि हमने कभी किए नहीं ना ये बेटा, तो हमें पता नहीं क्या सिचुएशनशिप, काउंट, बॉडी काउंट, तो क्या है ये भाई, मुझे नहीं पता। फाइन। तो सिचुएशनशिप मतलब कि आप डेट नहीं कर रहे, पर आप हरकतें सारी डेटिंग वाली कर रहे हो, कि मतलब ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मतलब बॉयफ्रेंड मतलब वैसे जैसे तू करती है। मैं नहीं करती भाई किसी के साथ मेरे पॉडकास्ट पे भी, इग्नोर दैट। बट मैं तो नहीं करती, बट मतलब यही कि आप डेटिंग वाली हरकतें सारी कर रहे हो पर डेट नहीं कर रहे हो। तो एज अ मदर, जैसे उनके 2 बच्चे होते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि एक तो पसंद होगा ही दूसरे से ज्यादा, है ना? तो ये बताओ कि ये सच है
या नहीं, क्योंकि अब आपके पास दो चीजें हैं, ऑब्वियसली एक ना एक आपको थोड़ी 0.0001% भी आपको ज्यादा पसंद आ सकती है। नहीं, बच्चे ऐसे हैं कि दोनों माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं। ये उंगलियां है ना, एक कटेगी ये थोड़ी कि इसमें कम दर्द होगा, दोनों कटेंगी दर्द होगा, चाहे वो आधी कटे। तो ऐसा नहीं है कि पर माँ अपने बच्चों को सेम प्यार करती है। हाँ, उनकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं। एक है बच्चा वो अपनी माँ को पलट के जवाब दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है। एक है कि वो हर बात में मम्मी मम्मी कर रहा है या माँ को सपोर्ट करता है। तो बच्चे तो माँ किसकी तरफ झुकाव करेगी ज्यादा? जो जवाब दे रहा है उल्टे सीधे बदतमीजी कर रहा है उसके लिए या उसके लिए? इतना फर्क होता है, वो बच्चे के व्यवहार में हाँ, होता तो है। आप माँ बाप choose कर की रहे तो हो। सेम ही है। जैसे एक इंसान की आइडेंटिटी होती है, जैसे मैंने आपको बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पर ये क्वेश्चन कितना ही आपने बोला कि हाँ मीनाक्षी कनका's मॉम ये वो, पर आपको नहीं लगता कि आपकी एक अलग आइडेंटिटी है अपार्ट फ्रॉम बीइंग मम्मी, हाउसवाइफ, ये वो? दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ हूँ, तो वो ये है। हाँ, बाकी पर मैं वो आइडेंटिटी नहीं हो गई ना, आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है? कि मतलब who are you, like तेरी who are आइडेंटिटी क्या है? कि मैं आई एम कनका एंड No, आई I एम am वर्किंग। Meenakshi. अरे यार मतलब आई एम ए मॉम। वो नहीं, फिर वो मम्मी की क्या रिश्ता कनेक्ट कर रही हो? कोई मैं मैं पॉलिटिशियन अपने नहीं हूँ आप को कि जो मैं नेता हूँ। नेता का होता है, हीरो होता है, उसकी होती है अपनी पहचान। हमारी क्या हाउस वाइफ है। आप किसी रिश्ते से अपनी आइडेंटिटी कैसे जोड़ सकते हो? आप ये थोड़ी है, अब मैं तो नहीं बताती कि मैं इसकी बेटी हूँ उसकी बेटी हूँ। आई एम लाइक क्या आई एम कनका बिकॉज तो मैं बस मीनाक्षी मीनू। पर फिर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट यही होता है मैं मम्मी ऑफ दिस। हाँ Housewife तो होंगी। अभी हम अगर हम कुछ कर रहे होते हैं, आप ये, मतलब बिजनेस वुमेन होती मैं, एक्ट्रेस होती, सिंगर होती या कोई जॉब में होती बड़ी पोजीशन पे, तो हाँ, मैं मतलब- बोलती कि आई एम दिस। पर अब मैं कुछ नहीं हूँ, हाउस वाइफ। तो वही तो तो हाउस वाइफ को हाउस वाइफ ही बोलोगे, मुझे गर्व है। हाँ आई आई एम मीन प्राउड ऑफ माई ऑब्वियसली सेल्फ। दैट इज ट्रू, वो तो है क्योंकि उनके बिना हाँ वो भी जरूरी है, मतलब ये हाँ, भी तो बस प्रोफेशन ही हो है, तो गया। आपको बस पैसे हाँ। नहीं मिलते वो बात अलग है। फ्री की मेड हाउस वाइफ। पर है वो भी एक प्रोफेशन। हाँ। पर फिर आपको कभी ऐसे लगता है अभी कि काश मैंने ये कर लिया होता या लगता है, बहुत रिग्रेट होता है। क्या मतलब वो क्या करना था? मुझे सिंगिंग सीखनी थी। अभी तो खैर बिना सीखे मैं गाती हूँ, पर एक था मन कि मैं बस सीखूं, जाऊं इस प्रोफेशन में, पर वो पसंद नहीं था। तो आपने मुझे कभी कोरियोग्राफर क्यों नहीं बनने दिया? याद है मैंने आपको कहा था बचपन में? मैंने तो मना नहीं किया। आपने कहा था कि बहुत लक चाहिए होता है। तूने जब मुझे फिल्म इंडस्ट्री बोला तो डायरेक्ट। कोरियोग्राफर तो मैं फिल्म उसमें तो भाई एकदम से आप सपना देखो कि जी करो, भाई उसमें लक चाहिए ही होता है। आप एकदम से ऐसे नहीं जा सकते। मुंबई कितने हजारों लोग शायद जाते होंगे सपना लेके, उसमें से लाखों में से कोई एक या दो लोग चुने जाते हैं। हाँ, हो सकता है तू होती उसमें एक या दो में। आई थिंक मैं आपको फीडबैक ये दे रही हूँ कि आपको हॉबीज पे भी फोकस करना चाहिए हाँ, था एज पेरेंट्स, जो कभी आपने करा नहीं, मतलब क्योंकि आपके लिए पहले पढ़ाई आई, उसके बाद ये सब चीजें आई है। पर हॉबीज आपको आप अगर मुझे हॉबीज से आप एक प्रोफेशन बना सकते हो। हमारा आप पढ़ाई ये से था भाई शायद नहीं पीसीएस आईएएस ऑफिसर बने दोनों बच्चे, कोई एक तो जाए उसमें। पर तुमने कहा नहीं जाना मम्मा इस लाइन में, तो हमने कोई फोर्स किया नहीं। पर मैं वही तो कह रही हूँ, अगर आप हॉबीज पे अपने बच्चों को बिल्डअप करोगे तो शायद वो उनमें ज्यादा एक्सीलेंस ले पाएंगे रादर देन स्टडीज। अगर आपका बच्चा चलो ये बात अब समझ में आई, तो अब कैसे करोगी? अब क्या करो, अब तो कुछ नहीं कर सकती। तो अब तुम समझो इस बात को। हाँ, अब ये तो तुम्हें सीखना है, गलतियों से तो सीखता है ना इंसान। हमने अब सीखा, अब तुम अब सीखो। एक्सेप्ट करते हैं हम, तो हमें कोई वो नहीं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, हॉबीज बिल्कुल होनी चाहिए, पढ़ाई भी जरूरी है, हॉबीज भी। ट्रू। तो ये क्या और क्या आप लास्ट एंडिंग नोट पे एडवाइस देना चाहोगी बच्चों के लिए? बच्चों को भी, मम्मी को भी, कुछ भी जो आप यही कि भाई जो आपके बच्चे बनना चाहे उन्हें बनाइए, अपना बिल्कुल मत थोपिए अपनी इच्छाएं उन पे। जो वो बनना चाहे उन्हें। ये 3 इडियट्स नहीं चल रही है यहाँ पे। जो बच्चे चाहे मतलब हाँ, नहीं जो बनना चाहे बच्चे को, कभी तक हमने रोका भी नहीं बेटा, तो इसमें तुम ये नहीं बोल सकते। हाँ, गलती क्या हुई है बता तो रही। हॉबीज पे नहीं ध्यान दिया, ये गलत है। हॉबीज पे ध्यान दो अपने बच्चों के। और मम्मियों को क्या कि बच्चों में ही नहीं लगे रहना चाहिए ना, मम्मियों को भी, उनको भी अपना, उन्हें भी अपने शौक पूरे करने चाहिए। हर लेडी अपना शौक पूरा करता है मुझे लगता है आफ्टर 40।
क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं उस टाइम पे। तो उसके बाद लगता है कि नहीं हम ये करें अपनी इच्छा से, हम ये करें, क्योंकि उस टाइम वो फ्री हो जाती है। हाँ। बच्चों की जिम्मेदारियों से, घर की इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, बच्चे छोटे होते हैं उनका काम बहुत होता है, जब बड़े हो जाते हैं तो अपना। इसी डर से आई थिंक अब बहुत लड़कियां बच्चे चाहती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब मैं पर्सनली, मेरा मानना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फाइनेंशियल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, इमोशनल, मेंटल, सब आप बच्चे देखो में डाल लड़कियों को शादी से पहले ही या तो अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में चले जाना चाहिए शादी से पहले, दो। उसे कंटिन्यू करें, वो फिर रिग्रेट नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर आपने शादी तक कुछ नहीं किया कि जी शादी के बाद करेंगे, वो आपका कभी नहीं हो पाता। फिर हाँ। शादी के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप उलझ के रह जाते हो परिवार में, बच्चों में, और एक सही भी है भाई, जो फिर तो उसी में रह जाते हो आप। तो फिर आपको अपनी इच्छा पूरी करने का टाइम मिलता है आफ्टर 40। पर वर्किंग अगर मदर है तो वो सेम टाइम पे बच्चा भी संभाल रही है और वो घर भी संभाल रही है, वो भी पॉसिबल है। वो भी, हाँ वो भी पर होता है। उनको बहुत लोग ऐसे देखते हैं वो कि मैनेज करने, आप मैनेज कैसे करोगे, वो तो आप ही के ऊपर है ना डिपेंड, कि आप मैनेज कैसे करोगे उस चीज को, कि घर भी, बच्चा भी, परिवार भी। हाँ। अकेली लेडी फिर भी नहीं कर सकती, उसे भी सपोर्ट चाहिए होता है, हस्बैंड का, फैमिली का। आप अकेले नहीं ये सब संभाल सकते ना। पर उनको भी ऐसे देखते हैं कि अरे अभी तो बच्चा पैदा करा है, अब चली गई काम पे, पर गलत है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं आपको करना क्या चाहिए, लगता है? या फिर आपको भाई शादी नहीं करनी चाहिए ऐसी लड़की से जो भैया वर्किंग, जब आपको उससे काम भी चाहिए तो वो काम नहीं कर सकती। फिर आपको या तो काम ही करवाओ, घरेलू लड़की, शादी लो भाई। बहुत है ऐसी लड़कियां जो घर में रहना पसंद करती हैं, या फिर वर्किंग ले रहे हो तो फिर उससे उम्मीद मत लगाओ कि ये जी घर भी संभालेगी तुम्हारा, बच्चा भी संभालेगी। फिर मिल के करो तुम सब, पूरी फैमिली मिलके करे, प्यार से करे, तो वो सब पॉसिबल हो जाता है तब। जैसे अभी ना शाहिद कपूर की वाइफ जो है मीरा कपूर, उसने ऐसा स्टेटमेंट बोला था पहले, मतलब जब आई थिंक उसकी बेटी पैदा हुई थी, तो उसने कहा था कि मैं तो अपने मैंने बच्चे पैदा इसलिए करे हैं कि मैं मतलब उनके साथ रहूं, ये वो, मेरे बच्चे कोई मतलब पपी नहीं है कि मैं उसको घर पे छोड़ के बाहर काम पे चली जाऊं। पर ये आपको क्या लगता है, ये सही है कि गलत? बच्चों को पप्पी, पहली बात तो बोलना गलत है। पप्पी जानवर के बच्चे, कुत्ते के बच्चे। हाँ, कि वो मतलब पप्पी नहीं है, मैं तो अपना बच्चों को पैदा। तो ठीक है, उसने अपना काम छोड़ा ना, उसका काम था ही नहीं, वो काम ही नहीं करती थी। अच्छा, मुझे उसको कोई काम नहीं करती, पर उसने ये बोला क्योंकि उसको लोग बहुत ये कह रहे थे कि तुम तो बच्चे करके घर पे बैठ गई हो, तुम तो कुछ काम नहीं करती हो। जब वो काम करती नहीं थी तो उसमें वो काम नहीं करती, लोग उंगलियां उठा रहे हैं उसमें। जब वो बेचारी घर में ही रहती थी तो ठीक है, घर में बच्चे संभाले। पर ये भी तो है ना कि आप घर में बैठ कैसे सकते हो? अब मैं बैठी हूँ घर में, भाई मैंने तुमको पाला है, मैं घर में बैठी, तो मुझे तू कहेगी बाहर जा? नहीं। हाँ ट्रू, ये भी है। मतलब वो करती नहीं थी काम, वो घर में ही रहना होता है उसको, तो ठीक है। पर ऐसे बोलना कि जो काम कर रही है उनको नीचा तो नहीं दिखाना चाहिए ना, कि मतलब ओ तुम तो काम कर रहे हो जाके, तो तुम मतलब ये थोड़ी कि जो काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को पप्पी समझ रहे हैं। नहीं। उसी तरह से वो सहूलियत उनके पास होगी, फैमिली होगी उनके पास सपोर्टिव, भाई जो बच्चों को संभाले। नहीं होती तो वो भी घर में ही बैठती। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको पहला बहुत अच्छा वीडियो रैप अप करने? बहुत अच्छा आ रहे हैं, जबरदस्ती कराया तूने, मुझे पता नहीं था ये इंटरव्यू लेगी तू मेरा। इंटरव्यू नहीं है, ये पॉडकास्ट है मम्मी। जो भी है पॉडकास्ट, मैं पहली बार ही आई हूँ ना, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं भाई, तेरी माँ हूँ। बट ओके, थैंक्स। और कुछ अगर आपको कहना है लास्ट? नहीं जी, थैंक यू सो मच। क्या बोलूं? Okay, bye. Sounds really cliche, but please do like, share, and subscribe if you do like it, and also comment down below whatever you think about this. So anyway, thank you so much. See you soon. Bye. चल हो गया।